of heaven and earth who's getting everything right. Every valley is being cleared, every crooked way is being made straight, every rough part is becoming smooth, and every mountain is being leveled in the name of Jesus over your life. Miracles, 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 miracles. He's a miracle working God, and He's doing the miracle in your life at this very moment. Bless yourself from head to toe. Bless yourself. Touch your head and touch your toe and bless yourself. Bless yourself. Do it in action. Bless yourself from head to toe in the name of Jesus. And let the blessing come into your life, into every dimension of your life. Family, come. The entire family, come here. Come this way. Look this way. Open your hands and allow the presence of the Lord to touch you. Let the glory of the Lord, let the glory of the Lord, let the glory of the Lord, let the glory of the Lord cover you. Let the blessing of the Lord cover you. Uneasiness, anxiety is leaving in the name of Jesus. The future is full of hope. Let that hopelessness leave in the name of Jesus. And the presence of the Lord takes care and takes control. There's a supernatural shift that is coming in your life. Do you get it, brother? The supernatural shift of the Lord is coming in your life as you offer it everything at the feet of the Lord. You have not come here by chance, but it is God who has highlighted you and spotlighted you, because He is bringing freedom and deliverance in your life from head to toe. Those patterns, those routines, and those stagnancies are leaving in the name of Jesus, because the glory of the Lord is covering you at this very moment. He is going to give you clarity. Do you understand? He is going to give you clarity for your future and clarity to move ahead. That is the wisdom of the Lord that enters your life at this very moment. He has taken care of you from the age of 13 to around 17 and a half. There were various things that were happening in your life. The Lord of heaven and earth was there then, He is there today, and He will be there in the future. Something to do with your tooth or dent. The Lord is bringing healing and deliverance in the name of Jesus. There is coming a supernatural shift. Understand, when the Lord is speaking through His prophets, that supernatural shift is manifesting into your life. Certain fruits do not agree with you, daughter. Certain fruits do not agree with you, but the Lord is bringing you healing and deliverance and blessing in your life. Your future is bright in the name of Jesus. The God of heaven and earth who created you knows how to take care of you, and your future will be taken care by the Lord. Just offer everything at the feet of the Lord. The Lord brings you blessing, favor, healing and deliverance. Certain times you are not able to have that sound sleep. The Lord is bringing you that blessing, that victory, that success in your life. Receive the touch of the Lord. The anointing breaks the yoke of the enemy. Let the sorrow leave your right now. I see the spirit of sorrow in you. You are so sad and sorrowful. You are thinking everything is over, but nothing is over. God has taken over. The Lord has not finished. It doesn't matter what you see. What matters is the plan of the Lord. God has not finished with you. You may feel nothing is there, it's all over, but there is something new that's going to happen in your life. The Lord is taking you to another level. A new door is opening in your life. You are going to see the glory of the Lord. You are going to see the blessing of the Lord. This also is leaving your family. Some fear is leaving your family. Some bondage is breaking right now. But deliverance is happening right now. Receive the touch of the Lord. I see some heaviness on the
the shoulder, sleeping right now. There is something that something like a responsibility you have, and something that you are carrying as a burden, and let the burden be broken right now in the name of Jesus. The Lord who created you will take you through and put your trust in the Lord. Miracle is happening right now, even as we are speaking and prophesying over your life. Hold your hands as a family. Hold your hands as a family. Say, Jesus, prepare family, bless us, heal us, empower us, strengthen us, and use us. Let your presence take over right now all that which is trying to surround us. We are free in your name, and we know our future is bright as we receive you as our only God and Savior. Come into my heart, come into my life, come into my family, come into everything. Be the Lord, be the Master of the universe, of our lives. The God of heaven and earth is taking care of you. Great days ahead in the name of Jesus. Hallelujah. The Lord loves you and the Lord takes care of you. Go ahead. I will bless thee. Touch your head. People of God, listen what I'm telling you. Touch your head, and from your head to the toe, touching it, ask the blessing of the Lord over your life. From head to toe. From head to toe. From head to toe. From head to toe. May you be blessed and be favored in the matchless, powerful, glorious name of Jesus. Everybody do it. Everybody do it. Touch your head. From your head to the toe. We are also doing it. From the head to the toe. Let us all do it right now. We are also doing it from the head to the toe. Let the blessing come. Let the blessing come. And let the favor and the victory and the success. Whatever. From east, west, north, south to the ends of the earth. Whatever is our portion, let the blessing come. And from east, west, north, south, whatever that is not of the kingdom of the Lord trying to come against us, we send it back from where it comes. Oh, Father, we believe. Father, we receive. These are times. Come on, clap your hands, lift up your hands, clap your hands and give God the glory. Lift up. You make the blood step in it. Now, why do I say clap your hands? Why do I say clap your hands? Because when the resounding clap of the hands happen, understand, the walls of Jericho fall down. When Joshua shouted with a loud shout, with faith, the walls of Jericho fall down. Now again, lift up your hands. The God has blessed you from head to toe, from east, west, north, south. He has brought the blessing in your life. In advance, lift up your hands and loudly clap and say, thank you, Lord. Everybody, oh, thank you, Lord. Open your mouth. Whatever the request is, thank you, Lord. The maker of heaven and earth is here, touching the lives of his people. He is faithful, he is holy, and he is mighty, and he is the same yesterday, today, and forever. Try and working things here in your life. The brother in the brown shirt, come ahead. Brother in the brown shirt. Brown shirt में जो है again शब्द बरकतर जल्दी आइए शब्द बरकतर हे बरकतर अपने हाथों को खोलिए और प्रभु पर विश्वास कीजिए इंग्लिश हिंदी अपने हाथों को खोलिए और जिंदा खुदा पर ध्यान दीजिए जिंदा खुदा राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु उसने आपको छुआ है उसने आपको बुलावट दी है उसने आपको आगे बुलाया है ताकि आपके जीवन में बरकत छुटकारा आशीष आशीर्वाद वो इस वक्त बरसा रहा है हे जिंदा खुदा राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु इस वक्त आपके जीवन पर उसकी महिमा बरसा रहा है समझिए उसकी महिमा का क्या अर्थ होता है
उसकी महिमा आपका अंधकार फोड़कर कुचल कर आपको छुटकारा देती है। उसकी महिमा आपके जीवन में आजादी लाती है। उसकी महिमा आपके जीवन में बरकत लाती है। जो 6 साल से ऊपर हो गया, आप बरकत की सोच में और बरकत की आड़ में आगे पर सोच रहे हो, या बरकत के लिए रुके हो, प्यासे हो, भूखे हो, प्रभु इस वक्त आपके जीवन पर उसका बरकत बरसा रहा है। और आप जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी है आपके जीवन में। इस बरकत के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, कितनी रोटियां तोड़ी, कितने जगह आप बदलते गए, और कितनी रास्ते पर आप आते गए, कितने चीजों पर आप अटके खड़े थे। और आज इस बरकत के लिए प्रभु ने आपको इस घर में बुलाया है, और आज आपके जीवन पर प्रभु आशीर्वाद डाल रहा है। हाथ उठाइए, इधर देखिए, वापस मैं बोलता हूं, इधर देखिए। क्या आप समझ रहे हैं क्या प्रभु कह रहा है? क्या आप समझ रहे हैं? वो 6 साल से ज्यादा जो हो गया, वो तकलीफ, वो अलग अलग जगह आपने बदली, क्या ये सच है? अलग अलग स्टेट आपने बदले, सच है। अलग अलग चीजों में आप अपने आप को अटके पड़े देखे, और आज इस वक्त ये है दिन यहोवा ने बनाया है आपके लिए आनंदित होने के लिए, आपकी आजादी के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपके बरकत के लिए। सबसे लेकर देर तक यीशु मसीह आपके जीवन में छुटकारा ला रहा है, आजादी ला रहा है, और यीशु मसीह आपके जीवन में बरकत ला रहा है। बहुत से गैर समझ भी हो गए इस 6 साल के दौरान, जब आप जगहें बदल रहे थे, चीजें बदल रहे थे, काम करने के लिए देख रहे थे। बहुत से गैर समझ हो गए, बहुत सा अंधकार आपके जीवन में आया, आपको समझ नहीं पाया क्या करना है, क्या नहीं करना है। कंफ्यूज रहते हो, रात में नींद नहीं आती है, सर भारी रहता है, टेंशन होते रहता है, और आप नहीं जानते आप कहां जा रहे हो। आज प्रभु आपको सही ऑर्डर पे ला रहा है, और आपको बताएगा आप कहां जा रहे हो। आप आपके ग्रीन पैस्चर्स में जा रहे हो, आप आपके प्रभु का जो डेस्टिनी, गॉड गिवन डेस्टिनी आपके जीवन पर प्रभु आशीषित कर रहा है। सांस फूल आती है बहुत बार, और ऐसा लगता है कि सांस चली जाएगी और अस्थमा के जैसा होता है। क्या ये होता है आपके जीवन में? कल एडमिट था हॉस्पिटल में, आज इधर ही है, इसी चीजों की वजह से। क्या आपने ये हमें बताया है? क्या यहां पर आप पहली बार आए? पहली बार आए, खड़े हो जाओ। ये पॉस्चर जो आपने बताया, घुटने टेक कर प्रभु की उपस्थिति में, क्योंकि आपने उसकी महिमा को पेश किया। हालेलुया। कल हॉस्पिटल में एडमिट थे, ये सब चीजें आपके जीवन में हो रहा है, प्रभु ने बताया है। क्या आप जानते हो जो प्रभु आपके जीवन के बारे में इतना बोल सकता है, क्या वो आपके जीवन में सोल्यूशन नहीं ला सकता है? ला सकता है कि नहीं? ला सकता है कि नहीं? आपका जवाब बहुत जरूरी है। हम भविष्यवक्ता क्या बोलते हैं वो जरूरी नहीं है, आपका जवाब प्रभु के लिए बहुत जरूरी है। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। आज ये निर्णय कीजिए कि मैं गलत चीजों से दूर रहूंगा। हालेलुया। मैं गलत चीजों से, पाप से दूर रहूंगा। मेरा जीवन पूरी तरह से मैं यीशु तेरे चरणों पर डालता हूं और मैं आगे बढ़ता हूं। हालेलुया। हे यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है, इस वजह से हम आपके जीवन में भविष्यवाणी कर रहे हैं। आपके जीवन से बहुत से बंधन टूट रहे हैं। हालेलुया। अपना जीवन यीशु मसीह के सामने लाते। कोविड के टाइम आप मरते मरते बच गए। कोविड के टाइम आप मरते मरते बच गए। प्रभु ने आपको बचाया, क्योंकि प्रभु की एक योजना है, और जब तक आप वो योजना में नहीं जाएंगे, आप कभी भी शांति में नहीं रहेंगे। टाइम वेस्ट मत कीजिए, और जो योजना यीशु मसीह ने आपके लिए रखा है, वो योजना की ओर जाइए। संगत, गलत लोगों, गलत चीजें से दूर रहिए। ये बंधन है आपके जीवन में, ये बंधन की वजह से आप अपने आजादी में, आप अपने पैसे के आशीर्वाद में नहीं जा पा रहे। सब कुछ आज आप प्रभु के चरणों पर रखें। आज आप यहाँ पे आए, प्रभु आपको आजादी देगा। बहुत कुछ आपके जीवन से बिगड़ रहा है। आप जो हॉस्पिटल में भी एडमिट है, वो बिना कारण के एडमिट है। कारण नहीं था, जरूरी नहीं था, लेकिन बिना कारण शैतान ने घुमाया और हॉस्पिटल में। सोचिए आपके जीवन में क्या क्या हो रहा है। लेकिन सबसे ऊपर ये है कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, और इससे
किया है Amen. कि वो आज आपके जीवन में आजादी है। अगर यीशु मसीह ने चाहा तो आज जीवन में आजादी Hallelujah. आजादी आपके Hallelujah. जीवन में। The Son of God sets you free. Amen. You are free. Amen. और हमारा बहुत सारी तुम ये खड़े हो गए, और हमारा भाषा करके सर्वश्रेष्ठ। आपको पता है प्रभु ने क्या बात किया है और क्या उसकी ताकत है आपके जीवन में करने के लिए। इतना सब आपके जीवन के बारे में बताया क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। आपका नाम क्या है? धर्म। कहां से हो? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से धर्म अपने आप को पूरी तरह से यीशु के चरणों पर रखो और प्रभु आपके जीवन का छुटकारा देता है। बोलो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इस वक्त मैं अपने आप को पूरी तरह समर्पित करता हूं और गलत चीजों से दूर होते हुए तेरे पास आते हुए मेरा जीवन तेरे चरणों पर पूरी तरह समर्पित करता हूं। होने दे मेरे जीवन में बरकत, आशीर्वाद, उजाला, तेरा प्रकाश, ताकि मैं आपका हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। हालेलुया। अभी देखिए, जो बीत गया वो बीत गया। आज से नया जीवन है, आज से चंगाई है, आज से छुटकारा है, आज से आशीर्वाद है, आज से बरकत है। वो आंसू कभी भी खाली नहीं जाएंगे। प्रभु आपको हंसाने के लिए खुशी और आनंदित रखेगा। हालेलुया। ऊपर देखिए, हंसिए। हालेलुया। प्रभु का आशीर्वाद आपके जीवन में हो और बरकत में आप आगे जाओ। बैठिए। ये है वो पंप। हम आपके जेब में क्या है पता नहीं है, पर आपको प्रभु ने छुटकारा दिया। जैसा बोला वैसा करा। हालेलुया। अब ये पंप को क्या करना है? फेंकना है कचरे में। फेंकने के लिए तैयार हो? विश्वास हो? अब भी फेंकना। अब भी जाओ, फेंको। उधर ही कचरा रखा है। हालेलुया। हे भगवान, आपके विश्वास के लिए ठोको ताली। हालेलुया। जैसे आप यहाँ पे है, मैं देखती हूँ कि पवित्र आत्मा आपके घर को हाथ लगा टच कर रहा है और आपके घर में एक शांति आ रही है। बहुत सी चीजें जो प्रभु का राज्य का नहीं है, जो आपके घर में है, इस वक्त निकल रहा है। आपके घर को डिस्टर्ब कर रहा है, वो इस वक्त निकल रहा है और आपके घर में शांति, आपके घर में खुशी, आपके घर में पैसे का बरकत आ रहे हैं जो बहुत टाइम से नहीं है। आपके शरीर में भी तो दर्द है, इस वक्त वो दर्द निकल रहा है। कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें आप नहीं खा पाते हैं, आपको वो देखेंगे तो कुछ तो लगता है, लेकिन इस वक्त प्रभु वो भी बर्तन आपके जीवन से निकाल आप सब कुछ खा पाएंगे। You will be more healthier. You will be more healthier. There is something that you are praying for. I have seen some elderly people. मैं कुछ elderly लोग आपके जीवन में आपको के लिए प्रार्थना आपके परिवार में आपके पिताजी या माताजी या कुछ तो elderly लोग हैं, सास ससुर लोग हैं, आप उनके लिए बहुत प्रार्थना करें। कुछ तो भी जीवन में हो रहा है और उसके वजह से आप बहुत चिंतित हैं और आप उनके लिए प्रार्थना करें। आप यहाँ पे है और आत्मा को वहाँ छू रही है, जीवन में आशीर्वाद हो रहा है। हर आंसू जो प्रभु के घर में गिरता है वो खाली हाथ रहे। आपके आंसू कभी भी खाली हाथ नहीं जाएगा। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। The Lord loves you. You are a precious child of the Lord, and you will enjoy the devotion that is yours as you cling to the Lord. अपने हाथों को खोलिए और प्रभु की उपस्थिति में भरपूरी में खो जाएंगे। शब्द कुछ चीजों में फलदायी नहीं होते हैं। Fruitfulness, you are not experiencing fruitfulness in many areas of your life. You're doing your hard work, you're putting in the labor, but fruitfulness, success is long due in your life. It's far away in your life. God is bringing that in your life. Does that make sense for you?
क्या आप समझ पा रहे हो क्या प्रभु कहता है? कुछ कुछ चीजें फलदायक आपके जीवन में नहीं हो रहे हैं, सक्सेस नहीं आ रहा है, आशीर्वाद नहीं आ रहा है, कुछ बहुत दूर लगता है, प्रभु वो खींच कर आपके जीवन पर ला रहा है और वो बरकत और आशीर्वाद और वो फलदायक जीवन आपके जीवन पर आशीषित बरसा रहा है। शब बरकत हे नक्कल्स बोलते हैं इसको, नक्कल्स बोलते हैं। नक्कल्स में कभी कभी सुन होता है और दर्द होता है। प्रभु आपके जीवन में छुटकारा दे रहा है। आप पकड़ नहीं पा रहे आपके आशीर्वाद को, आप पकड़ नहीं पा रहे आपके आशीर्वाद को, चीजों को भी फिजिकली आप पकड़ नहीं पाते हो, जैसे स्पिरिचुअली मैं बोल रहा हूँ, चीजों को में भी पकड़ आपकी ताकत कम है। प्रभु इस वक्त आपके जीवन में छुटकारा और बरकत ला रहा है। हर एक जंजीर, हर एक जकड़ आपके जीवन से फूट कर निकल रही है। हे कई साल के जून के महीने से लेके जुलाई के फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई, 15 तारीख के पहले, जुलाई के 15 मतलब जून के महीने से आधा जुलाई के महीने तक बहुत सा कंफ्यूजन आपके जीवन में चल रहा था, बहुत सी गड़बड़ी आपके जीवन में चल रही थी और वो गड़बड़ी का कारण आप नहीं समझ पा रहे थे। आज प्रभु आपको उसके उपस्थिति में लाया है, क्योंकि वो गड़बड़ी आपका हिस्सा की नहीं थी। आप कुछ कुछ चीजों में लड़ाई करने गए। समझिए, अंदरूनी बातें समझिए। There is in English we say sometimes we enter uncalled battles, unfruitful labor. कभी कभी हम दूसरे के हिस्सों का लड़ाई और दूसरे के हिस्सों का झगड़ा में हम घुस जाते हैं। इसके लिए हमारे जीवन में कंफ्यूजन आता है। वहां से शुरुआत हो गई थी जून के महीने से लेकर जुलाई के आधा 15 फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई में वो कंफ्यूजन वहां से आ रही थी, वो आपका हिस्सा का नहीं था। अगली बार समझ रखिए, हर एक चीजों में मत घुसिए। समझे क्या मैं बोल रहा हूं? आपको समझ रहा है? और आपके जीवन में छुटकारा लाएगा। क्या यहाँ पर आप पहली बार आए? जो भी प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा बताया दिखाया, क्या ये सच है? सच है, क्योंकि प्रभु मेरा राजा सच्चा खुदा है, तो वो सच्चा ही काम करता है। अपने हाथों को उठाकर, हाथों को उठाइए, उठाना, हाथों को उठाइए और पूरी तरह से प्रभु के चरणों पर समर्पित कीजिए। बोलिए, प्रभु यीशु, मैं पूरी तरह से तेरे पर विश्वास रखती हूं और सब कुछ तेरे चरणों पर समर्पित करते हुए आगे बढ़ती हूं, आगे बढ़ती हूं, पीछे नहीं देखती हूं और कोई भी चीज जो मेरे हिस्सा का नहीं है उसमें मैं नहीं घुसती हूं और तेरे पर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ोतरी में जाती हूं। धन्यवाद प्रभु। शब बरकत आपने ये प्रार्थना विश्वास की गई है। देखिए, आपके जीवन में जो टर्न होता है, जो बदलाव आता है आपके जीवन में, आप उसके बारे में यहाँ पर आपकी गवाही देंगे। हालेलुया चाहिए।